So we have with us Jagannath Yatra Prabhu. So, seven, I had a very brief and good association of Prabhuji. First, when I met him, it was, I think, Kopata Amrutwahini. Yeah, Sangam में Amrutwahini ना engineering college. What is the name of Prabhu was in charge? स्वयं भगवान Swayam Bhagavan, that youth center, huge, massive youth section. So, Prabhuji was lecturer in the same college, I think. And you did this engineering also is somewhere, same region or Bombay? मुंबई Mumbai. विजिट Vijay, yeah. So Prabhuji is a brilliant student from his school days. He part of Navodaya. He was done with a doctor in Navodaya. One of his dream students from Navodaya was admitted in VJTI. VJTI is one of the best engineering college in Maharashtra. One of the top. So after completing his engineering naturally, he wanted to dedicate fully. So for some time, he was working as a lecturer in Amrutwahini Engineering College in Sangam. He was an great instrument in teaching. I remember in that particular college when I visited, almost 150 students were taking photography. And morning katha and evening katha, Chaitanya Charitamrita. And students, when attending those classes, it was compulsory for them before taking prashad. Gaurarati was a massive reaching. Learn the secret from them. Yes. So it was a very nice and being inspired by them, they in NIT we built a big voice because they have their own youth center structure. So Prabhu was instrumental in that teaching, being part inside Manning College. So I was very inspired by that experience being with him. That was my first interaction with him. And later on then, Prabhuji eventually joined Chowpatty. So he was mentored, guided, personally nurtured by Gaur Gopal Prabhu, his counselor. And after completing 2 years intensive Srimad Bhagavatam study, विद्यापीठ Vidyapitam, Bhaktivedanta Vidyapitam, in Vada. 2 years they completed all their will and go विद राधेश्याम प्रभु with Radhesham Prabhu, yeah, that same batch, I remember. Fortunate batch. So then, unusual, he didn't continue being part of GE or Chowpatty, but he chose to go to Pachwara, your village in Jalgaon district, I remember. So he went back to his village. And that's the way his parents also stayed. Amazing, he cultivated many relatives and started a center in Pachwara, his village, and also contributed a lot in Jalgaon, preaching. And later on, he was inspired to give value education to the students. And not on just a small scale, one Navodaya, because he's being passed out from Navodaya, being green student from the Navodaya, had a very good rapport with the college management, teachers, principals. They invited him, and not just invited, but encouraged him to go to all the Navodaya. Not just one Navodaya, two Navodaya. So far you have covered almost 120.
100 and 120 Navodaya colleges. One Navodaya is for one taluka. One district. Yeah, one district, one Navodaya. So he covered 120 districts. Maharashtra, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu. No school. Huh? No school in Tamil Nadu. Navodaya. हिंदी नहीं ना वो लोग हिंदी नहीं बोलते. Yeah, they don't allow. Except Tamil Nadu. So he's covering all states. It's a pan-India program to cover Navodaya. So he is blessed by Lord Nityananda and his Guru Maharaj to do this very unique seva because he believes and trusts that in the new generations they are willing to listen, and if the seeds are properly nurtured, it will eventually grow. Wherever they go, all over India, they will be part of Krishna consciousness movement. It's a wonderful seed nurturing program. Thank you very much, Yatra Prabhu. It was a pleasant surprise to see him here in Dharwad. We came back from Goa and I saw him in ashram. I was calling you, but your phone was switched off because you were in Goa, na? Okay. I was calling you. Achha, okay. So, but it is a pleasant surprise to see Thank you. So also we have a fortune to hear from him. Chaitanya Charitamrita Katha. Thank you very much. Hare Krishna. Shriman Sadayagi Prabhu ki jai. We'll sing a small bhajan and then we'll start Katha. Nityan Prabhu loves Vrindavan, so our regular bhajan, Jai Radha Madhava, we'll sing twice per year. Jai Radha Madhava, Kunja Vihari, Jai Radha Madhava, Kunja Vihari. Jai Gopijana Vallabha, Giridharadhi. Jai Gopijana Vallabha, Giridharadhi. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana, Yashodanandana Vraja Jana Ranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari. Jai Radha Madhava, Kunja Vihari. Jai Radha Madhava, Kunja Vihari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, कलियुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, ग्रंथराज भागवत महापुराण की, श्री चैतन्य चैतामृत की, जगत गुरु सुप्रभात की, नित्यानंद प्रभु आविर्भाव महोत्सव की, नित्यानंद प्रभु की, समवेत गौर भक्त वृंद की, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, समवेत गौर भक्त श्री श्री गुरु गोरख की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। हरे कृष्ण। तो मैं श्रीमान सदैव जी को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ पर आश्रय दिया और आप सबका संग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं श्रीमान श्री नित्यानंद प्रभु के जन्मोत्सव में आपके साथ भाग ले रहा हूँ। भगवान की विशेष कृपा है कि मुझे सौभाग्य मिला। हम सबका जीवन जो है भक्ति जीवन श्री नित्यानंद प्रभु के कृपा पर निर्भर है। श्री नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है और भगवान के मुख्य सेवक है, प्रथम सेवक है। भगवान श्री कृष्ण के प्रथम स्वांश अवतार, स्वांश रूप है। श्रीमती राधिका, श्रीमती राधा रानी भगवान के हृदय से, जो उनकी बाया बाजू है वहाँ से प्रकट होती है। बलराम जी जो है कृष्ण के दाएं बाजू से प्रकट होते हैं, ऐसा मैंने सुना। और श्रीमती राधा रानी और श्री बलराम जी दोनों मुख्य सेवक हैं। एक पुरुष रूप में है, एक स्त्री रूप में, लेकिन दोनों मुख्य सेवक है। दोनों का भावना यही होता है कि हम भगवान के सेवक हैं। और जबकि उनकी शक्ति जो है लगभग उनके समान ही है, भगवान श्री कृष्ण के समान ही है। बलराम जी का शक्ति और श्रीमती राधा रानी का शक्ति जो है लगभग समान है, लेकिन दोनों जो है सदा के लिए हम सेवक हैं, इस भावना में भगवान श्री कृष्ण के साथ होते हैं। और जो हम जीव हैं भगवान के विभिन्न अंश कहलाते हैं। इनका भी मुख्य हेतु उद्देश्य भगवान की सेवा ही करना है। जैसे हम सुनते हैं चैतन्य महाप्रभु का जो वचन है कि जीवे जो स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, कि हम सबका मूल स्वरूप जो है भगवान श्री कृष्ण का सेवक के रूप में है। लेकिन हम सबको स्वेच्छा होती है, हम सबको स्वेच्छा होती है, तो हमने अपनी स्वेच्छा का दुरुपयोग किया है। हमने बड़ा गलती किया है कि जो अपना मूल स्वरूप है, जो मूल अपना स्थान है, वो छोड़ दिया है। तो हमें भगवान बलराम जी और श्रीमती राधा रानी इनके उदाहरण से सीखना पड़ेगा, सीखना चाहिए कि जैसे बलराम जी जबकि भगवान के समान ही हैं शक्ति में, उनके प्रभाव में, लेकिन कभी भी स्वयं को भगवान की सेवा से दूर नहीं करते हैं। श्रीमती राधा रानी भी वैसे ही कभी स्वयं को भगवान की सेवा से दूर नहीं करती है। माता लक्ष्मी, महालक्ष्मी जी हैं, वो भी कभी भगवान नारायण की सेवा से कभी दूर नहीं होती है। लेकिन हम जो तुझसे छोटे अंश रूप में भगवान के सेवक है, हमने वो गलती किया है कि हमने भगवान का जो सेवा है छोड़ दी है। इसलिए फिर हमें इस जीवन में, अनंत जीवन में दुख मिलता है। कभी लोग बोलते हैं हमें दुख क्यों मिलता है जीवन में, हमने क्या गलती किया है, हमने क्या पाप किया है, दुख मिलता है। तो जो कहावत है इंग्लिश में कि इन गिविंग वी रिसीव, तो हमने दुख दिया है भगवान को, भगवान से अलग होकर, भगवान को छोड़कर, कि हम भगवान आपको नहीं मानते हैं, आपको नहीं, आपके साथ नहीं रहेंगे। तो ये जो हमने ऐसा व्यवहार किया है जिससे भगवान को दुख लगा है,
जैसे कोई बच्चा माता पिता को कहे कि मैं आपको नहीं मानता हूँ, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मैं आपको छोड़ना चाहता हूँ, तो माता पिता बड़े दुखी होते हैं। भगवान के विषय में क्या कहें, जो सबके परम माता परम पिता है और कोटि कोटि माताओं का प्रेम उनके हृदय में है, निस्वार्थ भाव उनमें है। और जबकि ये जीव भगवान को छोड़ के इस जगत में आया है, तब भी भगवान ने उसको छोड़ा नहीं है। भगवान परमात्मा बन के सभी जीवों के साथ सदैव साथ देते हैं। हम जो भगवद गीता में पढ़ते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यत्र माया, कि जबकि भगवान को ये जीव ने भुला दिया है, छोड़ दिया है, नहीं मानता नहीं जानता, लेकिन भगवान कितनी महान विशेषता है, कितना महान उनका निस्वार्थ प्रेम है, उदार प्रेम है कि ऐसे जीव के साथ भी हमेशा रहते हैं। कोई अपने घर में अपने साथ रहे और हमसे बात ना करे, हमें ना देखे, हमें कितना दुख होता है कि भाई साथ में ना हो तो अच्छा है, साथ में रह के बात नहीं, देखना नहीं तो बड़ा दुख होता है। वैसे ही भगवान जो है हम सबके हृदय में है, हम सबके साथ है, केवल साथ नहीं है, हमें संभालते हैं, हमें सब कुछ देते हैं। और ये जीव का इतना मिथ्याभिमान, इतना अहंकार, इतना द्वेष भगवान के प्रति कि भगवान को मानता नहीं है, जानता नहीं है, देखता नहीं है और सोचता है कि भगवान है ही नहीं, मैं ही हूँ, जो भी है, जो कुछ भी है ये मेरे लिए है। ऐसे जीव के साथ भी भगवान हमेशा रहते हैं, कितनी बड़ी बात है। तो हम समझ सकते हैं कि भगवान का जो अपने प्रति प्रेम है वो कितना निरपेक्ष है, कोई अपेक्षा नहीं है। भगवान कहते हैं कि बस ठीक है, मुझे नहीं मानता है, मुझे नहीं जानता है, लेकिन तब भी मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे तेरा इच्छा पूरा करने के लिए जो भी आवश्यक होगा व्यवस्था बनाऊंगा। ये परमात्मा का सेवक जो स्वभाव है। तो ऐसे भगवान जो है जो हमसे दुखी है या हमारे वजह से दुखी है, तो भगवान योजना बनाते हैं कि कैसे इन जीवों को पुनः उनके धाम में लाया जाए और उन्हें सुखी बनाया जाए। क्योंकि भगवान देखते हैं कि जब ये जीव खुद अनंत सुख भोगने के लिए आया है इस जगत में, लेकिन दुखी पाता है। जैसे हम सुनते हैं कि कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, निकट स्थित माया करे झपटिया धरे, कि ये दुख ये जीव जो है आया तो सुख के लिए, भगवान के धाम में सुख था, इस जीव को कुछ कमी नहीं था भगवान के धाम में, लेकिन माया के वश उसे ऐसा लगता है कि मुझे भगवान से अलग होकर, भगवान को छोड़कर ज़्यादा सुख मिलेगा। जैसे माता पिता के साथ बच्चों को सब व्यवस्था होती है, सब सुख मिलता है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं माया के प्रभाव में ऐसा लगता है कि मुझे अलग होकर ज़्यादा सुख मिलेगा, मेरी पत्नी जो है मुझे ज़्यादा सुख देगी, या मुझे अलग दुनिया बनाऊंगा तो ज़्यादा सुख मिलेगा। ऐसी भावना जो है, ऐसा जो विचार है उसे आता है। और फिर हम देखते हैं कि सुख तो कुछ मिलता ही नहीं है, हमें दुख ही मिलता है। तो ऐसे दुखी जीवों को भगवान पुनः सुखी बनाना चाहते हैं और भगवान अनेक अनेक योजना बनाते हैं। कभी कभी स्वयं आते हैं तो कभी कोई उनके निजी जो पार्षद होते हैं उनको भेजते हैं। और नित्यानंद प्रभु जो है बलराम जी के ही रूप है, बलराम जी है जो चैतन्य महाप्रभु के लीला में साथ देते हैं। जैसे बलराम जी को हम कहते हैं कि आदि गुरु हैं जो हमें सभी जीवों को भगवान का सेवा कैसे करना चाहिए वो सिखाते हैं। नित्यानंद प्रभु भी उसी भावना में हम सबके आदि गुरु हैं। वो चैतन्य महाप्रभु को कैसे हम सेवा दे सकते हैं, कैसे हम उनकी सेवा कर सकते हैं, उनको प्रसन्न कर सकते हैं, इन्हें सिखाते हैं। तो आज हम
चैतन्य महाप्रभु के लीला में जो मुख्य उनके सहचर हैं, पार्षद हैं, श्री नित्यानंद प्रभु, इनका जन्मोत्सव मना है। बड़ा विशेष दिवस है कि नित्यानंद त्रयोदशी जो हमें सदा के लिए आनंद दे सकता है कि हमें अपने जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो दे सकता है। तो हम आज जो चैतन्य चरितामृत है उसका जो 5वां अध्याय है, पहले आदि लीला का, जिसका नाम है भगवान नित्यानंद बलराम की महिमा है, उसका पहला श्लोक लेंगे और फिर आगे कथा बोलेंगे। वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्यम् वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्यम् श्री नित्यानंदम् ईश्वरम् श्री नित्यानंदम् ईश्वरम् यस्येच्छया तत्स्वरूपम् यस्येच्छया तत्स्वरूपम् अज्ञेनापि निरूप्यते अज्ञेनापि निरूप्यते वन्दे अनन्ताद्भुतैश्वर्यम् श्री नित्यानन्दम् ईश्वरम् यस्येच्छया तत्स्वरूपम् अज्ञेनापि निरूप्यते वन्दे अनन्ताद्भुतैश्वर्यम् श्री नित्यानन्दम् ईश्वरम् यस्येच्छया तत्स्वरूपम् अज्ञेनापि निरूप्यते। वन्दे अनन्ताद्भुतैश्वर्यम् श्री नित्यानन्दम् ईश्वरम् यस्येच्छया तत्स्वरूपम् अज्ञेनापि निरूप्यते। वन्दे अनन्ताद्भुतैश्वर्यम् श्री नित्यानन्दम् ईश्वरम् यस्येच्छया तत्स्वरूपम् अज्ञेनापि निरूप्यते। वन्दे अनन्ताद्भुतैश्वर्यम् श्री नित्यानन्दम् ईश्वरम् यस्येच्छया तत्स्वरूपम् अज्ञेनापि निरूप्यते। माता जी, वन्दे अनन्ताद्भुतैश्वर्यम् श्री नित्यानन्दम् ईश्वरम् यस्येच्छया तत्स्वरूपम् अज्ञेनापि निरूप्यते। वन्दे अनन्ताद्भुतैश्वर्यम् श्री नित्यानन्दम् ईश्वरम् यस्येच्छया तत्स्वरूपम् अज्ञेनापि निरूप्यते। शब्दार्थ वंदे, मैं नमस्कार करता हूँ अनंत असीम अद्भुत एवं अद्भुत ऐश्वर्य जिनका ऐश्वर्य श्री नित्यानंदम भगवान नित्यानंद ईश्वर ईश्वर यस्य जिनकी इच्छा से तत्स्वरूपम उनके स्वरूप अज्ञान से अपि भी रूप्यते समझा जा सकता है। अनुवाद श्री प्रभुपाद की जय।
मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नित्यानंद प्रभु को नमस्कार करता हूँ, जिनका ऐश्वर्य अद्भुत तथा असीम है। उनकी इच्छा होने पर एक मूर्ख भी उनके स्वरूप को समझ सकता है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो और श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय जयकार हो। यही षट श्लोके कहिलो कृष्ण चैतन्य महिमा, यही षट श्लोके कहिलो कृष्ण चैतन्य महिमा, पंच श्लोके कही नित्यानंद तत्व सीमा। तो मैंने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की महिमा का वर्णन 6 श्लोकों में किया है। अब मैं 5 श्लोकों में भगवान श्री नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन करूंगा। तो श्रील कृष्णदास कटाल गोस्वामी जी यहाँ पर अगले 5 श्लोकों में नित्यानंद प्रभु का महिमा जो है बोलने वाले, तो हम उसको पढ़ लेंगे फिर कुछ कथा का। सर्वता हे कृष्ण स्वयं भगवान, सर्वता हे कृष्ण स्वयं भगवान, तान द्वितीय देव श्री बलराम, तान द्वितीय देव श्री बलराम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण समस्त अवतारों के स्रोत हैं। भगवान बलराम उनके द्वितीय शरीर है। ये कई स्वरूप तो है भिन्न मात्र काया, ये कई स्वरूप तो है भिन्न मात्र काया, आद्य काय विभ कृष्ण लीला सहाय, आद्य काय विभ कृष्ण लीला सहाय। ये दोनों एक ही रूप है, केवल उनके शरीर में अंतर है। भगवान बलराम कृष्ण के प्रथम शारीरिक विस्तार काय वियोग है और कृष्ण की दिव्य लीलाओं में सहायक होते हैं। श्री कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र, श्री कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र, श्री बलराम संगे श्री नित्यानंद, श्री बलराम संगे श्री नित्यानंद। वे मूल भगवान कृष्ण नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और श्री बलराम उनके साथ श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए। संकर्षण कारण तोयशाई गर्भोदशाई च पयोदशाई, संकर्षण कारण तोषाई गर्भोदशाई च पयोदशाई, शशश्च सांशकला सनित्यानंद राम शरण नमस्ते। संस्कृत में है कोई बात। वे श्री नित्यानंद राम मेरे निरंतर स्मरण के लक्ष्य बने हैं। वे श्री नित्यानंद राम मेरे निरंतर स्मरण के लक्ष्य बने, जिनके पूर्णांश तथा पूर्णांश के अंश संकर्षण, शेषनाग तथा वे विष्णु हैं जो क्रमशः कारण सागर, गर्भ सागर तथा क्षीर सागर में शयन करते हैं। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण, श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण, पंच रूप धरी करें कृष्ण सेवन, पंच रूप धरी करें कृष्ण सेवन। भगवान बलराम मूल संकर्षण है।
वे भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए 5 अन्य रूप धारण करते हैं। अपने करे न कृष्ण लीला सहाय, अपने करे न कृष्ण लीला सहाय, सृष्टि लीला कार्य करे धुरी चारिकाय, सृष्टि लीला कार्य करे धुरी चारिकाय। वे स्वयं भगवान कृष्ण की लीला में सहायता करते हैं और 4 अन्य रूपों में सृजन कार्य भी करते हैं। अंतिम श्लोक लेंगे। सृष्टादिक सेवा तार आज्ञा पालन, सृष्टि आदिक सेवा तार आज्ञा पालन, शिष्य रूपे करे कृष्ण विविध सेवना, शिष्य रूपे करे कृष्ण विविध सेवना। अनुवाद। वे सृष्टि कार्य में भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करते हैं और भगवान शेष के रूप में वे भगवान श्री कृष्ण की अनेक प्रकार से सेवा करते हैं। तात्पर्य शुरुआत की जाए। अधिकारी जनों का यह मत है कि मूल चतुर्व्यूहों में प्रधान श्री बलराम मूल संकर्षण भी है। कृष्ण के प्रथम विस्तार बलराम अपना विस्तार 5 रूपों में करते हैं, 5 रूपों में करते हैं। पहला है महासंकर्षण, दूसरा है कारणोत्क्षायी विष्णु, तीसरा है गर्भोदक्षायी विष्णु, चौथा है क्षुरोदक्षायी विष्णु और 5वां अनंत शेष। ये 5 पूर्ण अंश आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगतों के कारण स्वरूप है। इन 5 रूपों में श्री बलराम भगवान कृष्ण को उनके कार्यकलापों में सहायता करते हैं। इनमें से प्रथम 4 विराट जगत की उत्पत्ति के कारण है और शेष भगवान की निजी सेवा के लिए उत्तरदायी है। शेष अनंत कहलाते हैं क्योंकि वे असंख्य रूपों में असंख्य प्रकार से भगवान के अनंत विस्तारों की सेवा करते हैं। श्री बलराम सेवक भगवान हैं जो स्थिति तथा ज्ञान के सारे कार्यों में भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। नित्यानंद प्रभु जो सेवक भगवान बलरामी हैं, वे अपने निरंतर सानिध्य से गौरांग महाप्रभु की वैसे ही सेवा करते हैं। तो हम देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु जो है स्वयं बलराम जो है सदा के लिए भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो यदि हमें कुछ समझना है, सीखना है, तो सबसे मुख्य बात यही होगी कि यदि बलराम ही कभी अपना सेवा नहीं छोड़ते हैं, माता लक्ष्मी कभी अपनी सेवा नहीं छोड़ती हैं, श्रीमती शारदा रानी अपना सेवा कभी छोड़ती नहीं है, जो इतने महान हैं शक्ति से भी और उनका स्थान से भी। हम जो एक तुच्छ जीव है, हम क्यों सेवा छोड़े, हम क्यों अपना जो मूल स्थान है छोड़े? क्योंकि जो व्यक्ति अपना स्थान छोड़ दे वो कहीं का नहीं रहता है, वो कहीं का नहीं रहता है। ना घर का ना घाट का, जो हम सुनते हैं कि वो कहीं का नहीं रहता है, वो केवल माया का खिलौना बनता है और जो सब जगह दुख पाता है। हमें सदैव अपना स्थान जो है पकड़ना चाहिए या हमेशा स्थान समझना चाहिए कि अपना मूल स्थान जो है भगवान की सेवा है, भगवान का धाम है। कुछ अपराधवश हम अपने स्थान से अलग हो गए हैं, च्युत हो गए हैं। तो एक हमें सुवर्ण अवसर मिला है पुनः कि हम अपने मूल स्थान को पा सकते हैं। हमें ये भी समझना चाहिए कि हमने गलती क्या किया है कि हम अपने स्थान से पतित हो गए हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि हमने गलत इच्छा की है,
इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहिन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परन्तप। 7वें अध्याय का गीता में 27वां श्लोक है कि हमने गलत इच्छा की कि हमने स्वयं मालिक बनना चाहा, हम स्वयं भगवान का स्थान लेना चाहें कि हम भी भगवान बनेंगे, छोटा भगवान बनेंगे। भगवान बड़े भगवान हैं, छोटे भगवान बनेंगे, लिटिल कृष्णा हम बनेंगे, हम भगवान का स्थान लेंगे। और भगवान का स्थान लेने का मतलब क्या है? भगवान का स्थान लेने का मतलब ये है कि स्वयं को मालिक समझना। हम कभी भी किसी चीज का मालिक नहीं हो सकते। अज्ञान के वश हम सोचते हैं कि शरीर का मालिक मैं हूं, अपने परिवार का मालिक मैं हूं, अपने घर जमीन का मालिक मैं हूं, ऐसा सोचते हैं और माया के हाथों में खिलौना बन जाता है। यही मूल कारण है कि हम अपना मूल स्थान को खो दिए हैं। जब कोई व्यक्ति जीव भगवान की सेवा छोड़ता है, भगवान को नहीं मानता है, तो उसका मुख्य पहला जो परिणाम होता है वो ये है कि वो व्यक्ति स्वयं को भी खो देता है, स्वयं को भी भूल जाता है। कितना बड़ी बात समझने के लिए क्या जो जीव कहता है कभी आत्मा कुछ नहीं होता है, ये सब कल्पना है, किसने देखा है, ये सब झूठ है, बस ये शरीर है, पहले जन्म नहीं था, आगे जन्म नहीं है, खाओ पियो मजा करो, बस यही दुनिया है, ऐसा लोग सोचते हैं। आज के कलयुग में तो बहुत संख्या लोग यही सोचते हैं। ऐसा क्यों सोचते हैं? उनका अनुभव ये ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने भगवान को भुला दिया है, वो भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान को छोड़ दिया है, भगवान को नहीं मानते जाते हैं। इसलिए उसका परिणाम ये होता है वो जीव जो भगवान का ही अंश है, इसलिए उसको भी वो भूल जाता है। संबंध है, जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानेगा वो खुद को भी नहीं मानेगा, वो किसको मानेगा? वो केवल मायावी जो शरीर है जो हमें सदैव दुख देता है, सदैव दुख देता है। ऐसा कभी नहीं था कभी ये शरीर ने किसी को सुख दिया हो, कभी नहीं। जो हम सुख समझते हैं वो केवल माया का भ्रम होता है जो हमें और दुख देता है। वास्तविक शरीर हमेशा दुख देता है क्योंकि ये हमें शिक्षा दंड देने के लिए बनाया गया है। जिस जीव ने अपराध किया, जो अपराधी जीव है, उस जीव को दंड देने के लिए माया शक्ति जो है, जो भगवान की दासी है, भगवान की सेवक है, वो हमें सुधारने का प्रयास करते हैं। वो भी सेवाएं मिलती हैं, वो भी अच्छे के लिए है, अपने अच्छे के लिए। यदि कोई अपराधी है उसे दंड ना मिले और बड़ा अपराधी बन जाता है, तो वैसे ही हमने जो बड़ा एक अपराध किया भगवान के चरणों में कि हम भगवान को छोड़कर, भगवान की सेवा छोड़कर खुद मालिक बनना चाहे, तो उसका फल हमें ये मिलता है कि हम स्वयं को भी भूल जाते हैं और केवल माया के जगत में मायावी जीवन जीते हैं जो हमें फंसाता है। तो कभी समझ नहीं देता, हमें कभी समझ नहीं देता है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम किसके हैं, हमें जो सुख चाहिए, समाधान चाहिए, वो कहाँ है, जीवन का लक्ष्य क्या है, कुछ हमें समझ में नहीं आता। सबको सुख चाहिए, सबको आनंद चाहिए, सबको प्रेम चाहिए, लेकिन वो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, किसी को पता नहीं दुनिया में। क्योंकि पूरे रूप से अज्ञान में फंस जाता है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जीव को लगता है मुझे सब कुछ पता है, मुझे ये पता है, मुझे वो पता है, मैं PhD हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इतना कुछ ज्ञानी हूँ, उच्च शिक्षित हूँ, लेकिन उसे स्वयं के विषय में कुछ नहीं पता है, वो लापता है। खुद खोया हुआ है, लापता है, गुमशुदा, लॉस्ट इन दिस मटेरियल। और सोचता है मैं कितना बड़ा विशेष ज्ञानी हूँ। ये माया का प्रभाव। और ऐसे जीवों को तो जब हमने इच्छा किया मालिक बनने का,
तो भगवान के प्रति द्वेष उत्पन्न होता है, क्योंकि वो तो मालिक है। एकल ईश्वर कृष्ण आठ सब नृत्य, ईश्वर स्वामी एक ही है, भगवान श्री कृष्ण जो है। और उनका भी स्वभाव यदि आप सोचेंगे तो कितना विशेष है तो स्वामी है, तो भगवान सबके मालिक, लेकिन वो भी स्वयं खुद को सबके सेवक समझते हैं। ये बड़ी बात है। बहुत समय हम बोलते हैं कि कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, हम सबको क्या करना चाहिए, कृष्ण भावना से युक्त होना चाहिए, कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। तो कृष्ण की भावना हम में आनी चाहिए। कृष्ण भगवान कृष्ण की भावना क्या है, एक शब्द में कहें वो सेवा की भावना है। कृष्ण कॉन्शियसनेस इज सर्विस कॉन्शियसनेस, कि भगवान स्वयं हमेशा सेवा के विषय में सोचते हैं। और सेवा क्यों, सेवा प्रेम का लक्षण है। यदि कोई किसी को चाहता है, प्रेम करता है, तो प्रेम प्रकट करने का एकमात्र जो साधन है वो सेवा है। और यही साधन सेवा जो है हमें आनंद देता है, समाधान देता है। तो भगवान को तो आनंद, वो नित्यानंद है, वो स्वयं आनंद के सागर है, और उनको स्वयं आनंद भी चाहिए, समाधान भी चाहिए। तो भगवान स्वयं सेवा ही करते हैं। तो ये सेवा का जो लक्षण है, जैसे हम देखते हैं कि बलराम जी स्वयं को सेवक समझते हैं, लेकिन कृष्ण जो है बलराम जी को बड़ा भाई मान के हमेशा उनकी सेवा करते हैं, उनकी चरण दबाते हैं, उनकी आज्ञा का पालन भी करते हैं, उनका सुनते भी है। हमने देखा है कि लीला में भगवान जो है, कृष्ण जो है, हमेशा बलराम जी को सम्मान देते हैं, बड़े भैया बड़े भैया। और वैसे ही कृष्ण जो है, जो श्रीमती राधा रानी है, उनको भी कितना सम्मान देते हैं। क्या वृंदावन की ईश्वरी है, स्वामिनी है, मैं आपका दास हूँ, ये कृष्ण बोलते हैं। उनके चरणों में बैठकर उनके चरणों की सेवा करते हैं। तो प्रेम का लक्षण है, प्रेम का उनका आदान प्रदान है। स्वयं भगवान राम जी जब आते हैं इस लीला, इस जगत में अवतार लेकर, अपने महान भक्त शिव जी का, महादेव का पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं, उनका सेवा करते हैं। प्रेम का लक्षण है। सुदामा जो भगवान का सखा है, वो जब द्वारिका जाते हैं भगवान से मिलने के लिए, तो स्वयं कृष्ण जो है उनके चरणों का सेवा करते हैं, अभिषेक करते हैं और उनका सब कुछ सेवा करते हैं। तो महाभारत के युद्ध में हम देखते हैं जो अर्जुन है, अर्जुन जो उनके दोस्त सखा भी है और जीजा भी है, भगवान स्वयं उनका रथ हाँकते हैं, सेवक बनते हैं। जबकि ज्ञान तो सब वही दिए हैं, गुरु वही बने हैं, जगत गुरु भगवान, लेकिन अपने भक्त के लिए स्वयं सेवक बनते हैं। तो ये भगवान का स्वभाव है कि सेवा करना। जैसे यहाँ माताएं बैठी हुई, पिता भी यहाँ, तो उनका भी अनुभव है कि उनके जो बच्चे होते हैं वो स्वयं माता पिता है, एक रूप से उनके मालिक है, बच्चों के स्वामी है। लेकिन माता पिता कितना सेवा करते हैं बच्चों के लिए, कितना ध्यान देते हैं, कितना सोचते हैं, कितना उनके लिए व्यवस्था बनाते हैं। क्यों? प्रेम का स्वभाव है, जो अपने होते हैं हम उनके लिए हमेशा सोचते हैं। तो इस जगत में सभी जीव भगवान के अपने हैं। मम एव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान बोलते मेरे, केवल मेरे अंश है, मम एव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन। तो भगवान को सबके प्रति अपनापन है, इसलिए भगवान किसी को त्यागते नहीं है। जैसे माता पिता अपना लड़का जो है, बच्चा जो है, कितना भी दुष्ट हो जाए, कितना भी पापी बन जाए, कितना भी गलत काम करे, माता पिता भी अपने बच्चे को त्याग नहीं सकते, त्याग नहीं सकते, अपने मन से भूल नहीं सकते। वैसे ही भगवान जो है
हम सभी जीवों को कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं भूल सकते, कभी भूलते ही नहीं। हमेशा हम सबका सेवा के विषय में सोचते हैं। और सेवा का मतलब क्या है? सेवा का मतलब है सुख देना। हम बोलेंगे मैंने बहुत सेवा किया उसका, लेकिन उसको सुख नहीं मिला तो क्या फायदा? कभी भी ऐसा होता है, कोई व्यक्ति सोचता है मैं बहुत सेवा किया, मैं बहुत काम किया उसके लिए, लेकिन आपके काम से भी उसको सुख नहीं मिला होगा, वो सेवा नहीं कहलाएगा। तो भगवान जो है हम सबको सुख देना चाहते हैं। तो कैसे सुख देना चाहते हैं? भगवान हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करके हमें सुख देना चाहते हैं। सुख देना मतलब क्या है? इच्छा की पूर्ति करना। तो जीव की जो इच्छा है भगवान हमेशा पूरा करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी गलत इच्छा होगी, भगवान उसको उस समय में समझाते भी है, लेकिन यदि हम ना माने तब भी ठीक है, तेरी इच्छा, उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान का इतना उदार स्वभाव है, ऐसे प्रेम के सागर भगवान को हमने छोड़कर खुद मालिक बनना चाहा, जो बड़ा दुर्भाग्य का कारण बना है। जो भाग्यवान होता है उसका हमेशा संबंध भगवान के साथ होता है। बिना भगवान के कोई भाग्यवान नहीं बन सकता है ना? भाग्यवान और भगवान का संबंध बहुत निकट का है। ये कोई भाग्यवान है, किसी को भाग्य मिला है जीवन में, तो भगवान की कृपा उसको मिली है, ये सिद्ध होता है। तो हमें समझना चाहिए कि अपनी स्थिति अभी जो है कि ये है मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि पश्यति। हम बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। और क्या संघर्ष चल रहा है? केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष चल रहा है, केवल जीने के लिए संघर्ष है। अपना अस्तित्व जो है अनिश्चित है, अपने अस्तित्व को ही धोखा है, अपने अस्तित्व को ही बड़ा क्या बोले अनिश्चितता है, भय है, या उसको बड़ा चैलेंज है, आह्वान है। पता नहीं हम कितना समय के लिए। क्यों? क्योंकि हमने भगवान को अपना कहना या अपना मानना छोड़ दिया। यदि हम इतना समझ जाएंगे कि बुद्धि से मनुष्य जीवन में हमें समझ सकते हैं, जो हमेशा बुद्धि मिली होती है, अध्यात्म बुद्धि, उससे हम समझ सकते हैं कि हम इस जगत के केवल थोड़े समय के मेहमान हैं। मेहमान तो एक बड़ी बात है, हम तो वैसे कैदी हैं। अपराधी है ना, तो फिर कैदी होता है, तो जेल में है, बंदी है। यदि ठीक है बंदी हमें इतना समझना अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर हम मेहमान कितना समझ सकते हैं? मेहमान हैं, थोड़े दिन के मेहमान हैं, हम दुनिया में आए हैं, तो एक थोड़ा ये भी समझना चाहिए कि मैं कहाँ से आया हूँ। यदि वो समझ में नहीं आएगा, पता नहीं होगा मैं कहाँ से आया हूँ, तो हमें फिर यहाँ से निकलने का इच्छा नहीं होगा। आज दुनिया में लोग जो है ये भी भूल जाते हैं कि मैं दुनिया में आया हूँ बोल के। वो सोचते हैं मैं पहले से ऐसा ही हूँ, जमींदार, इंजीनियर, डॉक्टर, ऐसा ही रहूँगा हमेशा के लिए, ऐसा सोचते हैं। मैं कभी बच्चा था, मैं कभी माँ के पेट में था, 9 महीना कोख में था, वो भी भूल जाते हैं। ये भी भूल जाते हैं कि एक दिन जाना भी होगा, भूल जाते हैं। तो सोचते हैं दुनिया में सेटल हो जाऊँ, अपने बच्चे को सेटल कर दूँ, अपना बिजनेस को सेटल बना दूँ। ये कितना बड़ा माया का प्रवाह, हंसने की चीज है। ये भूल जाता है दुनिया के इतिहास में कोई सेटल नहीं हो पाया अभी तक करोड़ों युगों में, तो मैं कैसे सेटल हो जाऊंगा? तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि व्यक्ति जो असंभव है वो इच्छा करता है मैं सेटल हो जाऊं। और यही विचार उस जीव को हमेशा चिंता देता है और दुख देता है, क्योंकि वो संभव नहीं हो पाता है। यदि ये समझ जाए कि हम दुनिया में आए हैं कुछ इच्छा की वजह से, गलत भी इच्छा कोई बात नहीं, लेकिन आए हैं इच्छा से, तो इच्छा पूरा होने के बाद हमें अपने गांव जाना चाहिए, ये समझ में आएगा।
और जब ये विचार आएगा कि मुझे जाना चाहिए, तो फिर यहाँ की आसक्ति, यहाँ का जो समस्या होता है हम छोड़ देंगे, क्योंकि थोड़े दिन की बात है, हमें अपने गांव जाना है वापस। ये विचार हमें हल्का बनाएगा। नहीं तो दुनिया में लोग सेटल होने के नाम से इतना कष्ट उठाते हैं और माया में फंसते जाते हैं, कभी बाहर निकल नहीं सकते। तो आज के दिन जो है, यदि हम इतना समझे कि हम मालिक बनने की गलत इच्छा से आए हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा समय का मालिक तो बनने के बाद हमें अपने गांव वापस जाना चाहिए, जो अपना मूल स्थान है। तो हमें मृत्यु का भय नहीं होगा। पहली बात, जो सबको मृत्यु की चिंता होती है, भविष्य की चिंता होती है, उससे मुक्ति मिल जाएगी। यदि हमें इतना भी समझ में आ जाए कि हम दुनिया में आए थे भगवान की धाम से, हमें अपनी इच्छा पूरा होने के बाद अंतिम समय जब आएगा भगवान के धाम जाना चाहिए, तो हमें मृत्यु का भय, मृत्यु का जो यातना होता है बहुत कम हो जाएगा, महसूस नहीं होगा। इतना भी यदि मान लेंगे तो, यदि भगवान का भक्ति की है, भगवान का नाम जप किए हैं, भगवान की सेवा में जुड़े हैं, तो फिर आज भी आनंद होगा और फिर नित्य आनंद होगा, हमेशा आनंद होगा। हमने अनुभव किया है कि यदि हम ये मान लें, प्रभुपाद जी कहते बहुत जगह अपने तात्पर्यों में, कृष्ण भावना भावित होना ये एक पल में, एक क्षण में संभव है, नहीं तो लाखों लाखों जन्मों में भी संभव नहीं है। आगे लिखते हैं इसके आगे एक वाक्य, ये तो केवल सत्य को जानने और मानने की बात है। सत्य को जानने और मानने की बात है, बस इतना बोलते हैं। ये जो वाक्य है भगवत गीता के दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक का जो तात्पर्य है, दूसरा अध्याय गीता का ब्रह्म निर्वाण जो आता है, ब्रह्मी स्थिति, ऐसा ब्रह्मी स्थिति, तो उसमें आता है 2.72 और तात्पर्य में 2-3 लाइन के बाद आता है कि हम एक क्षण में अपने मूल स्थान को पा सकते हैं। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। इस नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के नित्य सेवक है, तो हम क्यों ना बने नित्यानंद प्रभु जैसे, उनके पदचिन्हों पे क्यों ना चले कि बलराम जी भी खुद सेवक बनकर आनंद लेते हैं, तो हम क्यों ना वैसा आनंद ले। नित्यानंद प्रभु का नाम जो नित्य आनंद, नित्यानंदी है, परमानंदी है। क्यों? चैतन्य महाप्रभु की सेवा में जुड़े हुए। तो हमें यदि कुछ आनंद चाहिए, नित्यानंद चाहिए, परमानंद चाहिए, तो हम भी नित्यानंद प्रभु जैसा यदि स्वयं को सेवक मानकर भगवान की सेवा में जोड़ेंगे, तो अवश्य हम माया के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं और जीवन का लक्ष्य जो है वो पा सकते हैं। भगवान की सेवा कैसे की जाए? 5 मिनट बोलता हूँ अंतिम 5। तो भगवान की सेवा जो है, हमें अपने जो आचार्य हैं वो सिखाते हैं, अपने गुरुदेव जो है वो सिखाते हैं, उनके अपने उदाहरण से सिखाते हैं कि भगवान की सेवा कैसे की जाए, भगवान की सेवा कैसे करना है। हम अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते हैं, इसलिए वो स्वयं भगवान जो है गुरु के रूप में हमें आश्रय देते हैं और हमें मार्गदर्शन करते हैं। यदि हमें श्रद्धा होगी, विश्वास होगा कि अपने जो गुरुदेव हैं वो स्वयं भगवान के ही एक रूप है, उनके अवतार है, उनके प्रतिनिधि है, तो फिर हमें बहुत आसान हो जाएगा भगवान को प्रसन्न करना, भगवान की सेवा में प्रगति करना। और प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं कि जो गुरु होते हैं नित्यानंद प्रभु के ही एक प्रतिनिधि है, और जो शिष्य होते हैं उन्होंने अपने गुरु में हमेशा नित्यानंद प्रभु का जो उपस्थिति है देखना चाहिए कि गुरुदेव नित्यानंद प्रभु के प्रामाणिक प्रतिनिधि है। इसलिए अपने गुरु का यदि हम आज्ञा का पालन करते हैं, निश्चित रूप से हमें नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलता है। नित्यानंद प्रभु की कृपा से चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते हैं तो हमें शिष्य राधा श्याम सुंदर की सेवा मिल जाती है। भगवान की सेवा पाना सबसे कठिन है, सबसे महान चीज है।
उच्चतम है, हाईएस्ट, उच्चतम है, उत्तम है, वो हमें अवश्य प्राप्त हो सकती है यदि हम अपने गुरु का आज्ञा का पालन करते हैं। यदि कोई व्यक्ति शिष्य जो है अपने गुरु का चरणों का आश्रय छोड़कर स्वयं नित्यानंद प्रभु को भी पाना चाहेगा, वो संभव नहीं है। जैसे ये भी संभव नहीं है कि जैसे प्रभुपाद जी है जो एक महान आचार्य है, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उनकी कृपा भी जो है अपने गुरुदेव की कृपा के बिना हम नहीं पा सकते हैं। ये सिद्धांत है कि, और ये भी कहा जाता है दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु, ये भी तत्व जो है हमें समझना चाहिए। कोई भी लोग सोचते हैं हम केवल दीक्षा गुरु को मानेंगे, उनकी आज्ञा है तो वही मानेंगे, शिक्षा गुरु का हम नहीं मानेंगे। तो श्रील कृष्णदास कड़म गोस्वामी पहले ही अध्याय में चेतन चेतावनी में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि शिक्षा गुरु भी भगवान के ही प्रतिनिधि होते हैं, वो कोई अलग नहीं है। एक दीक्षा गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु होते हैं। दीक्षा गुरु स्वयं सदैव हमें समय नहीं दे सकते हैं, इसलिए स्वयं दीक्षा गुरु या भगवान जो है शिक्षा गुरु के रूप में प्रकट होते हैं और हमें छोटी छोटी बातों में भी सहायता करते हैं या अपना मार्गदर्शन करते हैं। हमें अवश्य ये विश्वास श्रद्धा होना चाहिए कि गुरु कोई केवल एक व्यक्ति नहीं है, एक शरीर नहीं है जिसमें सीमा होती है। गुरु ये भगवान का तत्व है। ये गुरु तत्व जो है ये भगवान के समान, ये अनंत है, असीम है। इसे कोई समय का, कोई ऐसा दुनिया का सीमा नहीं है। गुरुदेव किसी भी रूप में, किसी के भी माध्यम से हमें कृपा दे सकते हैं, हमें ज्ञान दे सकते हैं। ये सिद्धांत है। बिल्वमंगल ठाकुर एक वेश्या को भी अपने गुरु के रूप में देख पाए। उन्हें एहसास हुआ कि मेरे गुरु, अब गुरु ही उस रूप में उनको ज्ञान दिया। प्रभुपाद जी कहीं पर अपने जो पैम्पलेट छापते थे कुछ कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए, छोटी छोटी किताबें छापते थे, पैम्पलेट जैसा बुकलेट, तो उनको कोई बताया कि स्वामी जी ये पैम्पलेट बुकलेट कोई ज़्यादा पढ़ेगा नहीं है या कोई रखेगा नहीं, इसको बेच देंगे, इसको नहीं रखेंगे, आप अच्छा बड़ा किताब छापिए। तो उन्हें लगा कि मैं गुरुदेव उनके मुख से मुझे बोले हैं। तो ऐसा ये अनुभव हुआ कि जब हम प्रामाणिक भाव सेवा के लिए दिखाते हैं तो गुरुदेव अनेक रूप से अनेक रूपों में हमें सहायता कर सकते हैं, कृपा और ज्ञान दे सकते हैं। तो मैं अंतिम बात यही कहूँगा कि आज के इतना पावन जो अवसर है, चैतन्य नित्यानंद प्रभु का जन्मोत्सव है, तो हमें नित्यानंद प्रभु का कृपा पाने के लिए अपने गुरुदेव का चरणों का आश्रय लेना चाहिए। अपने गुरुदेव का चरणों का आश्रय ही हमें श्रील प्रभुपाद जी का आश्रय और परंपरा का आश्रय देकर गौ नित्य का आश्रय देगा। वही गौ नित्य का आश्रय हमें श्री श्री राधा श्याम सुंदर का सेवा प्रदान करेगा भगवत धाम में। तो इसका अनुभव हमें दुनिया छोड़ने के बाद नहीं, इस जगत में होते हुए भी, इस शरीर में होते हुए भी हमें होगा कि गोलोक वृंदावन एक केवल एक काल्पनिक ऐसी जगह नहीं है। हमें अनुभव आएगा कि ये नित्य एक सत्य एक स्थान है जहाँ से हम आए हैं और वहाँ की हमें झलक अवश्य मिल सकती है। और हमेशा हमें अनुभव आ सकता है कि वृंदावन जो है हम सबके हृदय में ही है। क्योंकि प्रभुपाद वो जगह कहें कि धाम जो होता भगवान का, ये अपना चेतना का भी स्थिति होता है कि वृंदावन इज नॉट ए फिजिकल प्लेस, इट इज द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। ऐसा प्रभुपाद जी का फेमस वाक्य है कि वृंदावन के लिए भौतिक स्थिति कोई जगह नहीं है, ये अपनी चेतना का स्थिति है, भाव है कि जब हम कृष्णा भावना भावित होते हैं, सेवा की भावना में होते हैं, तो हमें पूर्ण विश्व जो है भगवान का धाम ही लगता है। हमें सब जगह, जैसे गीता में भगवान कहते हैं कि एक भक्त जो है सभी जगह पर सदैव
भगवान को देखता है और भगवान में सब कुछ देखता है। सब जगह भगवान को देखता है, भगवान में सब कुछ देखता है। ऐसा भक्त जो है भगवान का बड़ा प्रिय होता है और ऐसा भक्त को भगवान कभी छोड़ते नहीं है। यमां पश्यति सर्वत्र स्वयं च मयि पश्यति जो श्लोक है कि जैसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि सावर जंगम देखे ना देखे तारा मूर्ति सर्वत्र होए इष्ट देव स्मृति, कि भक्त कुछ देखता है, पेड़ देखता है, पौधा देखता है, जमीन देखता है, कुछ दुनिया देखता है, तो वहाँ वो देखने के बाद भगवान की अनुभूति पाता है। क्यों? उसकी आंखों में, उसके चेतना में कृष्ण के प्रति सेवा का भाव है, तो उसे सब जगह दिव्यता, सब जगह शुद्धता, सब जगह भगवान का दर्शन होता है। लेकिन जो व्यक्ति खुद मालिक बनना चाहता है, उसे मंदिर में आकर भी भगवान का दर्शन नहीं हो पाता है, वो केवल भौतिक वस्तु देखता है। तो यही बात है, आज के दिन यदि हम इतना भगवान के चरणों में, नित्यानंद प्रभु की कृपा में, नित्यानंद प्रभु के चरणों में प्रार्थना करेंगे, नित्यानंद प्रभु हमें आपके चरणों का कृपा दीजिए, गुरुदेव का आश्रय दीजिए और हमें आपकी सेवा में संलग्न कीजिए, तो अवश्य बलराम जी जो है या नित्यानंद प्रभु जो है हमें कृपा करेंगे। नित्यानंद प्रभु ने जगाई माधवी जो इतने बड़े पापी थे, इतने बड़े अधम थे, पतित थे, यदि उनको इतना महान बनाया, कृपा देकर उनको उनका उद्धार किया, तो अवश्य हमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि हमें कृपा देंगे या ना देंगे, अवश्य देंगे। हमें केवल कोई वैष्णव का निंदा नहीं करना चाहिए, कोई वैष्णव का हमें द्वेष नहीं करना चाहिए, हमें गुरु का अवमान नहीं करना चाहिए। यदि हम इतना ध्यान देंगे कि हमेशा गुरु का सम्मान, सभी वैष्णव का सम्मान, सभी जीवों के प्रति सेवा का भाव दिखाएंगे, अवश्य हमें नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलेगा, हम सबका जीवन धन्य होगा। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मुझे कोई योग्यता नहीं है, लेकिन एक सेवा के रूप में मुझे यहाँ प्रभु ने आदेश दिया या सूचना दिया, तो मैं स्वयं को तुच्छ समझता हूँ और आप सबका आशीर्वाद का अभिलाषा करता हूँ कि मैं जो कुछ कहा हूँ उसका भी पालन कर पाऊँ और अपने गुरुदेव को कुछ प्रसन्नता दे पाऊँ। वो धन्यवाद। हरे कृष्ण। नित्यानंद प्रभु की जय, नित्यानंद महोत्सव की जय, जगत गुरु सुप्रभा की जय, जगत गुरुदेव की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। प्रश्न है ओके। तो आप बहुत अच्छा चैनल चुन लिया, आपने जहाँ से पढ़ के आ गए वही पकड़ लिए। तो व्हाट इज द आउटकम? जैसे कितना साल हुआ प्रीचिंग स्टार्ट करके आपने नवोदय स्कूल? 2 साल। 2 साल। तो अभी आउटकम क्या है, कॉलेज है या स्कूल है? 6 to 12। 6 to 12, ओके। जिन्हें सो व्हाट इज द रिजल्ट? कैसा है उसका? जिधर किए और कर्नाटक में दिस इज द फर्स्ट टाइम पहले आएगा? 11 जिला हुआ, 11 6 आया हुआ, 11 जिला हुआ, 11 स्कूल्स आया, लास्ट ईयर आया कर्नाटक में। हाँ, साउथ कर्नाटक, दक्षिण कर्नाटक। कर्नाटक में जितना फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम। सेकंड टाइम। व्हाट इज द आउटकम? इज इट गिविंग सम रिजल्ट्स? यस। पहली बात तो ये है कि